So we will start the chapter washing clothes with my mom, and it is with the theme that work is never a hardship. Don't think that any work which you do is a hardship for you. Okay, so I'll just start without wasting much time. Who is I here? Jamie, the author. The name is only written Jamie. Okay, I was raised in the family of 14 people. Here the author had a very big joint family and there 14 people lives along with him. So with only one bathroom, and the irony is that they have only one bathroom. Needless to say, scheduling bath time in my home was more than a simple task. When I was 7 years old, I learned the only way to get sufficient bath time was to wake up before my siblings. My mother gave me an old wind-up clock so I could wake up early. So I'm going to explain it. Okay, here यहाँ पे क्या है, जो ऑथर है इस कहानी को, जो इस चैप्टर को जो लिख रहा है ना, उसका नाम है जेमी। लास्ट में लिखा है चैप्टर में। सो ये कहते हैं कि मेरा जो हाउस था वहाँ पे 14 पीपल, हम लोग 14 लोग साथ में रहते थे और हमारे पास एक ही बाथरूम था। तो जो हमारे जो नहाने का जो टाइम था ना, वो शेड्यूल्ड था, है ना, टाइम टेबल के हिसाब से, ताकि सबकी जो है ना 14 पीपल एक बाथरूम शेयर करें तो ऑब्वियसली उनको शेड्यूल्ड वे से ही रहना पड़ेगा। When I was 7 years old, जब मैं 7 साल का हुआ, I learned the only way to get sufficient bath. तो मैंने जो है अपने आप नहाना सीख लिया। So, has to wake up, but he has to wake up before his siblings. Sibling कौन से होते हैं? Real brother और sister जो होते हैं ना, वो sibling होते हैं। Those who were born to the same parents, है ना। Cousins अलग होते हैं, चाचा के बच्चे, है ना, या मासी के बच्चे। Siblings, the children that born to the same parents, है ना, brothers and sisters. My mother gave me an old wind-up clock. So उसकी जो मम्मा थी, उन्होंने एक पुरानी सी अलार्म क्लॉक दे दी ताकि वो जल्दी उठ सके। नेक्स्ट पैराग्राफ। सो ताकि जल्दी उठ के नहा सके अच्छे से। The first morning I used the alarm. I woke up at 5:30, walked downstairs as quietly as possible and had a bath. While I bathed, I heard Dad stirring in the bedroom, which was adjacent to the bathroom. After I completed my bath, I was going back upstairs when I heard a buzzing in the basement. Okay, now I'm going to explain. So, two new more words are there. Adjacent, adjacent मतलब किसी चीज़ के बिल्कुल पास में होना, है ना। जो रूम था इनका, जो इसके फादर का रूम था, वो बिल्कुल बाथरूम के पास में था. So the room was adjacent to the bathroom. And basement जो नीचे की तरफ जो कमरा होता है घर के सबसे नीचे. So the first morning I used to use the alarm. मैंने पहली बार अलार्म क्लॉक यूज़ की, ठीक है. 5:30 अलार्म भर दिया था उसने. एंड वॉक डाउन स्टेयर्स. और जब मैं अलार्म से व्हेन आई वोक अप, जब वो उठा तो वो डाउन स्टेयर गया, सीढ़ियों से नीचे उतरा. बाथरूम नीचे था. As quietly as possible because it was early 5:30 in the morning, so he just walked as quiet as possible ताकि किसी की जो नींद है वो ख़राब नहीं हो जाए. So while I bathed, जब मैं नहा रहा था, देखो यहाँ पे इसको बाथ पढ़ते हैं, यहाँ इसको bathed. Okay, while I bathed, I heard dad stirring in the bedroom. उसने देखा कि डैड जो है शायद रूम के अंदर कुछ कर रहे हैं, कुछ आवाज़ आ रही है चलने की या हिलने डुलने की. So कैसे उसने आवाज़ सुनी? Because the room was adjacent to the bathroom. After I completed my bath, जब मैं नहा चुका था, I was going back upstairs when I heard a buzzing in the basement. I tiptoed to the basement landing and looked around the corner of the stairs. Mom was bent over our dryer, pulling clothes out and setting them on a table. She was singing. Without turning around, she said, "What are you doing?" I heard, but okay, what had happened? When he moved towards the basement, जब वो नीचे की तरफ जाता है तो उसने वहाँ पे कुछ आवाज़ सुनी, है ना. I tiptoed to the basement. Tiptoed का मतलब क्या होता है? छुप के जाना, पैरों की आवाज़ नहीं करते हुए चलना. And looked around the corner of the stairs. Stairs की कॉर्नर के अंदर उनका वहाँ पे वॉशर रखा हुआ था, वॉशिंग मशीन रखी हुई थी. पुलिंग क्लॉथ्स आउट एंड सेटिंग देम ऑन द टेबल. मेरी मम्मी वॉशिंग मशीन में से क्लॉथ्स को बाहर निकाल रही थी तो उसके ऊपर झुकी हुई थी वो.
शी वॉज सिंगिंग, और वो गाना गाते हुए अपना काम कर रही थी, अपने वर्क को वो इंजॉय कर रही थी। विदाउट टर्निंग अराउंड, मम्मी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और मुझे बोला, व्हाट आर यू डूइंग? आई हर्ड बजिंग, ही सेड, द ऑथर जेमी, ही सेड, आई हर्ड बजिंग, मुझे कुछ बजिंग की आवाज़ सुनाई दी। व्हाट आर यू डूइंग? वॉशिंग क्लोथ्स, मम्मा कहती है मैं तो कपड़े धो रही हूँ। दिस अर्ली, इसको बहुत सरप्राइज हो जाता है कि मम्मा इतनी जल्दी, मॉर्निंग में 5:30 इट्स ऑलमोस्ट, एंड शी इज़ वेरी अर्ली, शी इज़ वॉशिंग द क्लोथ्स 4 days a week, शी रिप्लाइड। मम्मा कहती है मैं एक वीक में 4 days तक क्लॉथ्स को वॉश करती हूँ। Mom explained that she woke up at 4 o'clock every Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday to wash clothes. She explained it was necessary to keep us in clean clothes. मम्मा कहती है ये बहुत ज़रूरी है हमें साफ़ कपड़े पहनना, इसलिए मैं वीक में 4 days मैं बहुत जल्दी उठती हूँ और क्लॉथ्स को धोती हूँ। That's up too, मम्मा डैडी भी वेकअप हो गए, वो भी उठ गए हैं। I said, I know, he does paperwork while I do laundry. मम्मा कहती हाँ वो अपना पेपर वर्क करते हैं जब मैं लॉन्ड्री का काम करती हूँ। Because it was the time the house is quiet enough to concentrate, क्योंकि इस समय जो है ना सब लोग सो रहे होते हैं तो पूरा जो हाउस है वो एकदम क्वाइट होता है और ज़्यादा हम कंसंट्रेट कर सकते हैं अपने वर्क की तरफ। Why are you singing? I asked. वो कहता है मम्मी आप गाना क्यों गा रहे थे? I might as well as enjoy my work. No use being upset. मैं तो अपने वर्क को enjoy करती हूँ, है ना, इसलिए मैं I was singing and I just enjoy my household work. Mom still used an old wringer washer. अब ये जो राइटर है ऑथर जेमी, ये हमें बता रहे हैं कि जो हमारी मम्मी का जो वॉशर था वो ओल्ड रिंगर था, जो रिंग करके जो जिसमें अलार्म वो सुनाई देती है बेल की आवाज़। But she was absolutely thrilled that she and Dad had scrappled together enough money to get a clothes dryer. लेकिन वो बहुत खुश थी कि मॉम ने और डैड ने जो है they scrapped together. Scrap together means they saved a little money. उन्होंने कुछ पैसे बचा लिए ताकि वो एक ड्रायर खरीद सकें, है ना। और she wouldn't have to hang up outside during winter anymore. और मम्मा को विंटर्स में जब धूप नहीं आती है तो क्लॉथ्स को बाहर सुखाने नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि वो थोड़ा सा ड्रायर में ड्राई हो जाएंगे। It was quite an old-fashioned dryer, not like the modern ones we have today, and the lint filter had to be cleaned after every load. Okay, ये जो है ना ओल्ड फैशन वॉशिंग मशीन थी, वॉशिंग जो ड्रायर था, और उसके अंदर जब वॉश होते हैं क्लॉथ्स तो एक बार में जब क्लॉथ्स वॉश होते हैं उसको कहते हैं एक लोड। तो एक लोड जब क्लीन हो जाता है तो उसके बाद एक लिंट फिल्टर, एक डिवाइस होती है जिसके अंदर जो भी थोड़ा बहुत जो गंदा हो जाता है हर वॉश के बाद तो उसको क्लीन करना होता है। मैं आपको एक पिक्चर शो करती हूँ। ओके, दिस इज कॉल्ड द लिंट फिल्टर। ओके, सो नाउ द ऑथर हैड to start with the cleaning of the lint filter and he just helped out his mom. Can I help? I asked. Who is I here? The author, Jamie. So Jamie asked his mother that can I help you? Sure. Mom started another load in the dryer and placed a large towel on the basement floor in the front of the dryer. Why don't you lie down and catch a nap until we are ready for another load? उसकी मम्मा कहती है ऐसे करो जब तक हम दूसरा लॉट आता है, ये जब तक वॉश होते हैं क्लॉथ्स तब तक ऐसे करो, जस्ट टेक कैच अ नैप। कैच अ नैप मतलब छोटी सी नींद ले लो, नैप झपकी, छोटी सी नींद ले लो तो नैप ले लो। द एयर फ्रॉम द ड्रायर वॉज वार्म एंड कम्फर्टेबल। आई स्लेप्ट अंटिल द ड्रायर बर्स्ट। यहाँ पे देखो ये ऑथर जो है ये सो रहा है यहाँ पे, है ना, मम्मा वॉश कर रही है क्लॉथ। तो जब तक कि लॉट क्लीन होता है एक बार का तब तक जो ऑथर है वो आराम से अपनी एक छोटी सी नैप को कैच कर लेता है। सो आई वॉज थ्रिल्ड व्हेन मॉम टॉट मी टू क्लीन द लिंट फिल्टर। अब जो मॉम है वो लिंट फिल्टर को क्लीन करना सिखाती है। एंड टू प्लेस द ड्राई क्लोथ्स ऑन द फोल्डिंग टेबल। शी मेड मी फील यूजफुल। आई रिमेंबर हाउ शी कॉम्प्लीमेंटेड मी ऑन अ जॉब वेल डन, although I remember dropping most of the clothes before I got them on the table. So here author state that when he had first cleaned and done his work, so his mother complimented him. जो पहली बार जब उसने लिंट फिल्टर को क्लीन किया ना तो मम्मा ने उसको बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट किया, उसको जो उसने वर्क किया था ना उसके लिए अप्रिशिएट किया। कॉम्प्लीमेंट देना मतलब अच्छे से कमेंट देना, गुड जॉब या वेल डन, वॉट एवर इज।
Okay, now we move to the next page. Okay, when my elder sisters woke up at 6 o'clock, they took their bath and then helped my mom carry the folded clothes upstairs. और फिर उसके बाद में जो उसकी सिस्टर्स थी, जो एल्डर सिस्टर्स, बड़ी बहनें जो थी ना, वो उठ गई. तब तक 6 o'clock हो गए थे और उन्होंने हेल्प की मम्मी की, whatever the work is going on. Okay, that was a ritual that I hadn't noticed until. और ये जो बात थी ना कि 6 o'clock मेरी जो एल्डर सिस्टर्स वेकअप हो जाती, ये राइचुअल था. राइचुअल मीन्स इट्स द एवरीडे वर्क, इट हैज बीन डन रेगुलरली. ये काम रोज ही होता था हमारे घर में, लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं था क्योंकि मैं थोड़ा लेट उठता था. ओके, द नेक्स्ट मॉर्निंग आई सेट द अलार्म ऑफ 4 o'clock. Next morning what he had done, he just set the alarm of 4 o'clock because he wanted to help his mother. I hurried through my bath and rushed to the basement to help mom. और नेक्स्ट मॉर्निंग से वो 4 o'clock उठने लगा और अपनी मम्मा की हेल्प करने लगा. She placed a towel on the floor. I slept until the dryer burst, then cleaned the lint filter and staked the clothes on the table. I slept. Okay, तो ये जो दो काम थे इसमें जो राइटर है जेमी, यहाँ पर नाम लिखा है, देखो, नेम ऑफ द ऑथर. सो तो मम्मा की में एवरी डे ही स्टार्टेड हेल्पिंग हिज मदर लाइक दिस. सो आई लुक बैक ऑन दोज डेज. अब ये जो राइटर है काफ़ी बड़े हो गए हैं, ये कहते हैं कि जब मुझे उन बातों को याद करता हूँ विथ फॉन्ड मेमोरीज. फॉन्ड मेमोरी मीन्स वेरी नाइस मेमोरीज, प्लीजेंट मेमोरी, फॉन्ड प्लीजेंट. सो ये कहते हैं अब तो बड़े हो गए, कहते हैं मैं छोटा था तो ऐसे मम्मा की हेल्प करता था, मुझे बहुत अच्छा लगता है उस बात को याद करना. माई पेरेंट्स टॉट माई सिबलिंग्स एंड मी. सो अब ये कहते हैं, अब इससे जो हमने एक राइटअप पढ़ा उससे हमने क्या सीखा. माई पेरेंट्स टॉट माई सिबलिंग्स एंड मी दैट वर्क वॉजेंट अ हार्डशिप. ये जो है ना इसकी थीम है, दैट वर्क वॉजेंट अ हार्डशिप. समटाइम्स व्हेन आई एम वर्किंग आई कैच माई सेल्फ सिंगिंग अ सॉन्ग. कभी कभी आज भी जब मैं काम कर रहा होता हूँ कुछ भी, तो मैं भी गाना गाने लग जाता हूँ. आई लर्न इन दैट ओल्ड बेसमेंट एंड स्माइल. वही गाना जो मैंने ओल्ड बेसमेंट में सीखा था अपनी मम्मा से, और मैं हंसने लग जाता हूँ, मुझे स्माइल आ जाती है मेरे फेस पे, क्योंकि मुझे जब याद आता है कि मैं जब छोटा था तो इसी तरह से मेरी मम्मा जो है अपने वर्क को एंजॉय करते हुए गाना गाती थी. इट्स अमेजिंग टू मी हाउ सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट मोमेंट्स क्रिएट फॉन्ड मेमोरीज दैट लास्ट अ लाइफ टाइम. तो ये कहते हैं कि हमारे बचपन की इसी तरह से मेमोरीज जो है ना वो इस तरह से बहुत अच्छा सा एक सिग्निफिकेंट हमारे ऊपर एक अच्छा इफेक्ट डालती. और हमने इससे क्या सीखा, दैट वर्क इज़ नेवर अ हार्डशिप. ओके, ऑलवेज एंजॉय योर वर्क. ओके, हैव अ नाइस डे.